Dear students, this is Tanveer sir. Welcome to Scientific Academy. Today I am going to teach you class 10 physics. First chapter of class 10 physics is light, as you know. So I am going to start today the introduction of light. Introduction of light. What is light? Introduction of light. Introduction of light. With its history. With the history of light. With the history of लाइट. लाइट की हिस्ट्री क्या है वो भी जानेंगे हम लोग. व्हाट इज लाइट ये भी जानेंगे हम लोग इस लेक्चर में. बच्चों, आज का ये इंट्रोडक्टरी क्लास जो हमारा है फिजिक्स का, ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्लास है, फुल ऑफ कंसेप्ट्स है. स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें कंसेप्ट मिलेंगे और फिजिक्स का कंसेप्ट, फिजिक्स में जो कंसेप्ट होता है वही मेन, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है. समझिए बच्चों. तो ये जो इंट्रोडक्टरी क्लास हमारा है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर क्लास 10 बट ऑल्सो इट इज़ यूजफुल फॉर हायर क्लासेस सच एज क्लास 12, नीट, जेई एंड ऑल्सो हायर क्लासेस. I am going to here give you so many concepts of physics. So let's start now. First chapter of class 10 physics is light. Introduction of light with the history of light. इसमें लाइट के इंट्रोडक्शन के साथ साथ बच्चों हम इसमें लाइट की हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे. तो SI यूनिट ऑफ लाइट, SI यूनिट of light. SI unit of light, that is luminous intensity. Luminous intensity. इसका जो होता है वो कैंडेला, इसको हम लोग शॉर्ट में CD भी लिखेंगे. SI यूनिट ऑफ लाइट. द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. स्टडी ऑफ लाइट. नंबर 2, द स्टडी ऑफ लाइट is called ऑप्टिक्स. यानी लाइट में जो हम स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिक्स कहलाएगा. तो सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ विजिबल लाइट. साथ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होता है, लेकिन सनलाइट इज द सोर्स ऑफ विजिबल लाइट. नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट. सनलाइट सोर्स ऑफ लाइट. Sunlight is the source of natural light. Clear? Sunlight is the source of natural light. Natural sources of light क्या क्या है बच्चों? What is natural source of light? What is natural sources of light? Natural sources of light. क्या है? Natural sources of light. Sun, stars, galaxies, and electricity in storms, fire,
electricity in storms. Electricity in storms. That is lightning. Lightning, इसको क्या कहते हैं? Lightning. Okay, clear? तो नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, सन, stars, fire, and electricity in storms, which is called lightning. There are some animals and plants that can create its own light, their own light. There are some animals and plants that can create their own light. For example, fireflies, jellyfish, plants, mushrooms, anglerfish, etc. ठीक है बच्चों? तो ये एनिमल्स एंड प्लांट्स, मशरूम, ये सब क्या प्लांट्स है? ये एनिमल्स एंड प्लांट्स. So there are some animals and plants that can create their own light. Fireflies, jellyfish, mushrooms, and anglerfish, called bioluminescence. These are called bioluminescence. Light travels in straight line path. As you know, light travels in straight line path. Light is a ray. Scientific name of light is electromagnetic radiation. Scientific name of light. Scientific name of light. Scientific name of light is electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. ठीक है? Scientific name of light is electromagnetic radiation. Light is made of all colors mixed together. Light is made of all the colors mixed together. Light is made of all the colors mixed together. The light travels faster than sound. 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 Unlike sound, light requires no any material medium to travel. Okay? It travels with the very high speed, very fast speed. It travels with very fast speed. Its speed is, unlike sound, light requires no any material medium to travel. साउंड को मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है. साउंड वैक्यूम से पास नहीं करता है.
लेकिन लाइट वैक्यूम और एयर से भी पास करता है। इसको किसी भी मीडियम में ट्रेवल करने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी मीडियम से वो ट्रेवल कर सकता है। हाँ, स्पीड थोड़ा डिक्रीज कर सकता है। मान लो वाटर से पास कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, या ग्लास से ट्रेवल कर रहा है, या किसी और मटेरियल मीडियम से ट्रेवल कर रहा है, तो वहाँ पे उसका स्पीड कुछ डिक्रीज कर सकता है। लेकिन और एयर और वैक्यूम में इसका स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और उस स्पीड ऑफ लाइट c से इसको डिनोट करते हैं, एंड इट्स वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इक्वल्स टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एंड दिस इक्वल्स टू 1,86,282 माइल्स पर सेकेंड। तो ये काफी हाई स्पीड है, और अब तक इससे ज्यादा स्पीड पता नहीं चल पाया है। ये स्पीड अभी तक कांस्टेंट है, और ये इससे हायर स्पीड से कोई भी चीज ट्रेवल नहीं कर सकता। इस स्पीड से ट्रेवल करने के लिए वैसा पार्टिकल चाहिए बच्चों जिसका मास नेग्लिजिबल है, जो यानी जो मासलेस है। दैट पार्टिकल विच इज मासलेस कैन ट्रेवल विद दिस स्पीड ऑफ लाइट। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, which is your elementary particles or fundamental particles, cannot travel with the speed of light, but a particle which has no mass, such as photon, can travel with the speed of light, because light is a form of energy, and that energy in the form of packet, in the form of quanta called photon. आगे हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट साइंटिस्ट का व्यूज क्या था, डिफरेंट साइंटिस्ट के स्टैंड्स क्या था, डिफरेंट साइंटिस्ट के नजरियात क्या थे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइट हैज नो मास, लाइट इज नॉट मेड आउट ऑफ एटम्स। लाइट किसी एटम से नहीं बना है, लाइट का कोई मास नहीं होता है, इट हैज नो मास, इसलिए इसको हम लोग, इसका मास जो है, फोटोन का मास जो होता है वो 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। Light travels in a straight line. The speed of light is faster than sound. Nothing can go faster than the speed of light. Nothing can go faster than the speed of light. Light has dual nature, wave and particle. ये सब आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। Light is a form of energy made of photon. इसको लिख लेते हैं। Light is a form of energy made of photons. It has no mass. अब कहेंगे मास नहीं है लेकिन मोमेंटम है, मास नहीं है फिर भी मोमेंटम, ये सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये हल्का सा स्लाइटली मैंने इसका लाइट के बारे में ब्रीफ आइडिया दिया। बिफोर गोइंग टू इंटर इन डिटेल्स इनटू द इंफॉर्मेशन ऑफ लाइट, लेट अस नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लाइट। फर्स्ट, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स वाज लेड इन एंशिएंट ग्रीस, now called Greek. The foundation of modern optics was laid in ancient Greece. Okay? तो ग्रीक में बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर्स थे, फिजिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, डॉक्टर्स थे, एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, जिन्होंने ऑप्टिक्स के बारे में, लाइट के बारे में बहुत कुछ बताया। What are their views?
about light. First of all, I am going to write down name of famous scientist whose contribution on light is extraordinary, precious. So let's see the list of scientists of Greek. See here, era of ancient Greece, now called Greek. Great philosophers, astronomers, mathematicians of ancient Greek. There are 7 philosophers, astronomers of ancient Greece whose contribution in light is great. So first one is Pythagoras, 570 BC to 495 BC. Second, Empedocles, 494 to 434 BC. Socrates, 469 to 399 BC. Plato, 427 to 347 BC. Aristotle, 384 to 322 BC. Epicurus, 341 to 270 BC. Euclid, 330 to 275 BC. तो ये जो ग्रीक के फिलोसफर्स हैं, इनका लाइट के बारे में जो खोज किया इन्होंने और जो अपना स्टैंड दिया इनका, ये सारे जो फिलोसफर्स हैं ये ग्रीक के हैं, यूनान के हैं। अब बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा लाइट के बारे में। अब देखिए, इतना पहले से लाइट की हिस्ट्री जो आप देख रहे हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं? देखिए, ये आप इसकी लाइट मैंने 5th to 3rd BC, 6th BC to 3rd BC, यहां से बिफोर क्राइस्ट, ये आपका देखिए इतने पहले की बात है। अब ये इनका कंट्रीब्यूशन लाइट के बारे में कब से चल रहा है, खोज कब से चल, और आज भी लाइट पे अभी जो 2022 का जो नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला वो भी लाइट पे है, क्वांटम मैकेनिक्स पे है, क्वांटम इंटेंगलमेंट पे नोबेल प्राइज मिला 3 साइंटिस्ट को। इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो यहाँ पे ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इसमें इन सेवन के अलावा मैंने 7 को चुना है, इसमें से ऑप्ट किया। इनके अलावा भी यूनान से, ग्रीक से बहुत ज़्यादा फिलोसफर्स रहे हैं जिन्होंने लाइट पे काम किया, लाइट पे रिसर्च किया। तो यहाँ पे भी मैंने 7 को लिया है। 7 में से जिनका नज़रिया, जिनके व्यूज़, जिनके स्टैंड्स लाइट के बारे में एक तरह के हैं, उनमें से अरिस्टोटल को हम यहाँ से इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, यूक्लिड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पाइथागोरस, एम्पिडोकस, प्लेटो, एपिक्यूरस, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नंबर 1 पे हम लेते हैं कि पाइथागोरस के बारे में तो आप लोग ऐसे भी जानते होंगे कि he is best known for his right angle triangle theorem याद होगा। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, और h इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस ने ही दिया था वो थ्योरम। ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट मैथमेटिशियन, मिस्टर पाइथागोरस। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बारे में चलते, इनका क्या नजरिया था, क्या व्यूज था पाइथागोरस का। पाइथागोरस ने लाइट के बारे में क्या कहा, उनका क्या स्टैंड था, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो पाइथागोरस का कहना था कि आवर आईज, हमारी जो आंखें हैं, आवर आईज ट्रांसमिट्स बीम विच मेड अस एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स। हमारी आंखें जो हैं वो बीम को ट्रांसमिट करती है, विच मेड अस एबल टू सी ऑब्जेक्ट, जिसके वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो लाइट रेज, इनका कहना था कि लाइट रेज इमर्जिंग फ्रॉम ए पर्सन्स आई एंड स्ट्राइक्स द ऑब्जेक्ट।
क्या स्टैंड था, क्या नजरिया था इनका कि लाइट रेज इमर्जिंग फ्रॉम ए पर्सन's आई एंड स्ट्राइक्स द ऑब्जेक्ट। लाइट रेज, ये पाइथागोरस बाबा का क्या कहना था, लाइट रेज इमर्जिंग फ्रॉम a person's eye and strikes the objects। ये इनका स्टैंड था। लाइट रेज इमर्जिंग फ्रॉम अ पर्सन's आई एंड स्ट्राइक्स द ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, ठीक, ओके, ये पाइथागोरस बाबा का कहना था। ठीक है, उसके बाद हम लोग एम्पीडोकस के बारे में जानते हैं कि इनका नजरिया क्या था। एम्पीडोकस, एम्पीडोकस का क्या कहना था बच्चों, ही वॉज ऑल्सो ग्रेट फिलोसफर एंड एस्ट्रोनॉमर। तो इन 450 BC इन्होंने जो अपना व्यूज दिया था, ये 480 BC में ये इनका पाइथागोरस का ये स्टैंड था। उसके बाद 450 BC में आते हैं हमारा एम्पीडोकस। ये क्या कहते हैं, लाइट वाज इमिटेड बोथ बाय ऑब्जेक्ट्स एंड द आईज। लाइट वाज इमिटेड या लाइट रे वाज इमिटेड बोथ बाय ऑब्जेक्ट्स एंड द आईज। लाइट वाज इमिटेड both by object and eyes। यह एम्पीडोकस का कहना था। एम्पीडोकस को देख रहे हैं, ये एम्पीडोकस का कहना था कि लाइट वाज इमिटेड बोथ बाय ऑब्जेक्ट्स एंड आईज, यानी ऑब्जेक्ट से भी लाइट निकलती है और आंख से भी निकलती है लाइट, ये इनका कहना था। इसके बाद हम लोग लेते हैं एम्पीडोकस के बाद इनका सोक्राट्स का भी स्टैंड उसी तरह का था। प्लेटो नंबर 3 पे जो हम लोग ले रहे हैं वो प्लेटो को ले रहे हैं। प्लेटो, ठीक है, ये 427 to 347 BC में ये आए। ये इनका कहना था, आईज प्रोजेक्टेड रेज ऑफ लाइट like a flashlight illuminating objects in front of them। Eyes projected rays of light, eye projected rays of light, light projected rays of light like a flashlight, like a flashlight, light projected rays of light like a flashlight illuminating objects in front of them। illuminating objects in front of them, इनके आगे जो भी आता है, इन फ्रंट ऑफ देम। तो इनका जो स्टैंड है, इनका जो नजरिया है, ये पाइथागोरस से मिलता है। ठीक है, अब यहां पे हम नंबर 4 पे लेते हैं। नंबर 4 पे रखते हैं एपिक्यूरस को। एपिक्यूरस बिफोर 270 BC इनका जो नजरिया था बच्चों, इनका जो स्टैंड था लाइट के बारे में, वो जस्ट अपोजिट टू द पाइथागोरस, जस्ट अपोजिट
टू पाइथागोरस। इनका पाइथागोरस का क्या कहना था कि लाइट रे इमर्ज करता है कहां से, आईज से, और स्ट्राइक करता है ऑब्जेक्ट पे। इनका कहना है कि लाइट रेज ऑब्जेक्ट से इमर्ज करता है, स्ट्राइक करता है आईज पे। इनका एपिक्यूरस का। एपिक्यूरस वाज आल्सो ए ग्रेट फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर ऑफ ग्रीक। बिफोर 270 BC ही आर्गूड, क्या कहा इन्होंने, ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस लाइट रेज, object produce light rays when light reflects off objects, when light reflects off object which then enters the person's eye. Objects produce light rays when light reflects off when light reflects off objects which क्या कहना था, just opposite to Pythagoras, object produce light rays when light reflects off objects, which then enters the person's eye, which then enters the person's eyes. ये स्टैंड था एपिक्यूरस का, जो ये पाइथागोरस बाबा के बिल्कुल अपोजिट इनका व्यूज था। ठीक है, इसके बाद हम नंबर 5 पर रखते हैं यूक्लिड को। नंबर 5 पे यूक्लिड इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैथमेटिक्स में ये कई थ्योरम, कई फार्मूला इन्होंने दिया है यूक्लिड ने। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन 300 BC, क्या कहा इन्होंने, यूक्लिड साहब ने क्या कहा कि ही प्रेजेंटेड ए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इन्होंने क्या किया कि एक प्रेजेंटेशन दिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, एंड डिस्कस द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट रेज इन स्ट्रेट लाइंस। क्या कहा इन्होंने, एक नया चीज आया, रिफ्लेक्शन के बारे में बताया इन्होंने। ही प्रेजेंटेड laws of reflection. He presented law of reflection. इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया, एंड डिस्कस द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट रेज, एंड discussed the propagation of light rays in straight line, straight line path। ये आपको यूक्लिड साहब ने कहा, क्या कहा कि इन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, एंड डिस्कस द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट जो प्रोपेगेट करती है वो किस तरह से स्ट्रेट लाइन पाथ में, सीधे पाथ पे, ये जिगजैग पाथ पे नहीं बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पे लाइट ट्रेवल करती है। तो ये जो हमारे ग्रीक के फिलोसफर्स थे, जिनमें हमने 5 का स्टैंड लिया, इनके व्यूज से, इनके स्टैंड से, जो लाइट पे इनका व्यूज था, उससे क्या कंक्लूजन निकलकर सामने आ रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। कंक्लूजन्स क्या नतीजा सामने आया,
अबाउट लाइट, अबाउट लाइट, लाइट के बारे में क्या कंक्लूजन आया? नंबर फर्स्ट, लाइट इज अ रे, लाइट इज ए रे। लाइट क्या है? लाइट इज ए रे, लाइट एक किरण है, ठीक है। लाइट इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। ये लाइट इज अ रे, it travels in straight line path. And third, light ray, it causes reflection, चलिए, तो यूनान से, ग्रीक से इतना चीज लाइट के बारे में पता चला कि लाइट क्या है? Light is a ray. Light travels in straight line path and it causes reflection. तो ये तीन चीज सामने ग्रीक से निकल करके आया, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग ग्रीक से बाहर चलते हैं और दूसरे साइंटिस्ट का व्यूज जानने की कोशिश करते हैं। तो टॉलेमी को लेते हैं, इसके बाद हम लोग लेते हैं टॉलेमी। हाँ, तो नंबर 6 पे हमने रखा टॉलेमी को, 100 AD टू 170 AD। चलिए, बिफोर क्राइस्ट का जमाना गया, अब हम लोग AD में आ गए, ठीक है। टॉलेमी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट के रहने वाले थे। ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर। इन्होंने बताया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। टॉलेमी का कहना, ही टोल्ड अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट as it passes from one transparent medium to another. He told about the refraction of light, refraction of light as it passes from one transparent medium to another, one transparent medium to another, ठीक है। यह है टॉलेमी साहब। चलिए, एक नई चीज आपके सामने आई। अब तक तो ग्रीक से यह निकल कर आया कि लाइट इज अ रे। लाइट क्या है? एक किरण है। लाइट इज अ रे, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट कॉजेज रिफ्लेक्शन। और लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, लाइट रे से रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन ये यहाँ पर एक नई चीज निकलकर सामने आई। कहाँ से? अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट से, बाय मिस्टर टॉलेमी। इन्होंने कहा कि लाइट कॉजेज रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट passes from one transparent medium to another transparent medium, it causes refraction। तो यहां से, इसमें से यहां कंक्लूजन क्या निकल कर आया? कंक्लूजन यहां से इजिप्ट से आया कि लाइट रेज causes refraction। चलिए, तो अब तक हम लोग लाइट के बारे में क्या जाने कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट रे है। उसके बाद लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट इज रे, लाइट कॉजेज रिफ्लेक्शन एंड लाइट ऑल्सो कॉजेज रिफ्रैक्शन। उसके बाद नंबर 7 पे हमने रखा है बच्चों,
अबू अली हसन इब्न अल हैथम अल हसन, अबू अली हसन इब्न अल हैथम अल हसन के नाम से इनको जाना जाता है। 965 AD to 1040 AD. He was a Muslim polymath. Do you know the meaning of polymath? A person who knows a lot about many different subjects is called polymath. Okay? So he was a great polymath, a Muslim polymath, mathematician, astronomer, physicist, doctor, and philosopher from the Islamic world. Okay? He was born in Basra, now in Iraq. Basra is called Iraq, now Iraq. पहले ये बसरा के नाम से इराक जाना जाता था। ठीक है, तो हिज हिस्टोरिक वर्क, इन्होंने एक किताब लिखा, इनका जो वर्क है हिज हिस्टोरिक वर्क, हिज हिस्टोरिक वर्क, हिस्टोरिक वर्क क्या है? किताबल मनाजिर, किताब अल मनाजिर, किताब अल मनाजिर, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, किताब अल मनाजिर, किताब अल मनाजिर मीन्स बुक ऑफ ऑप्टिक्स, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, ये किताब अल मनाजिर, इस पे इन्होंने 10 साल लगाया, 1011 to 1021। ये इनका हिस्टोरिक वर्क है, ये बुक ऑफ ऑप्टिक्स। ये मिस्टर अल हसन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। ओके, ही नोटेड that you cannot look at the sun for long without great pain। जब आप सूरज को देखते हैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते, क्योंकि ज़्यादा देर देखने से आँख में पेन शुरू हो जाता है और उससे हमको नुकसान भी हो सकता है। तो उनका कहना, ही नोटेड दैट यू कैन नॉट लुक एट द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ग्रेट पेन, एंड इफ यू स्टेयर एट अ ब्राइट ऑब्जेक्ट फॉर हाफ अ मिनट and then close your eyes, a colored image of the object floats into views. In each case, something emitted by the object must have entered the eye. ये इनका कहना था। Further, he argued that light originates not from the eye but from an object as that of the sun. He argued that light originates not from the eye but from an object as that of the sun, and then is reflected from the object of interest and into the eye. He noticed, इन्होंने क्या नोटिस किया? He noticed, why does the moon appear larger near the horizon than it does when higher up in the sky? तो इनका स्टैंड था, इनका व्यूज क्या हुआ? Vision occurs when light reflects from an object and then pass to one side. क्या इनका नजरिया था? Vision occurs when light reflects from an object। लाइट कहां से? ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करता है। विजन कब ओकर होगा? नजारा कब आप देखेंगे? किसी चीज को कब आप ऑब्जर्व करेंगे? विजन ओकर्स व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड देन पास टू वन साइड। ही वाज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट विजन ओकर्स इन द ब्रेन। मिस्टर अल हसन वाज द फर्स्ट। मिस्टर अल हसन वाज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट विजन ओकर्स इन द ब्रेन rather than in the eyes। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट इनका, लाइट के बारे में इनका व्यूज जो आया वो अब तक के ग्रीक से और अदर साइंटिस्ट जो अभी आपके सामने 6 आए गुजरे, उनसे इनका व्यूज डिफरेंट था और हलचल मचा दिया। ये किताब आई मार्केट में, किताब अल मनाजिर, 10 साल तक इन्होंने वर्क किया, हिज हिस्टोरिक वर्क। इसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, इसको कभी भूला नहीं जा सकता। ठीक है, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अल हसन साहब के का, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अभी आपने जाना तो किताब अल मनाजिर, बुक ऑफ ऑप्टिक्स इन्होंने लिखा, जो बहुत फेमस हुआ और आज भी बहुत फेमस है। तो कंक्लूजन जो इनके व्यूज से निकल करके आया वो क्या था? ये कंक्लूजन ये था कि विजन ओकर्स इन द ब्रेन
rather than in the eyes. कितना डिफरेंट व्यूज इनका आया कि विजन ओकर्स इन द ब्रेन, विजन कहाँ होता है? ब्रेन में rather than in the eyes. तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका अबू अली हसन यानी अल हसन साहब का। इसके बाद बच्चों हम नंबर 8 पे जिनको जगह दे रहे हैं वो है क्रिश्चियन हाइगेन। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद ये पार्ट ए में मैंने रखा, चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसको पार्ट ए में रखते हैं। इसके बाद पार्ट बी देखेंगे, थोड़ा जाएगा लेंथी में, लेकिन जानिए बहुत सारा कंसेप्ट इसमें आएगा, बहुत सारे कंसेप्ट ऑप्टिक्स के आएंगे जो आपको नॉट ओनली इन एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन डिफरेंट काइंड ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज नीट, जेई वगैरह में काम आएंगे। ठीक है, और ऐसे भी ये काफी वैल्यूएबल, काफी प्रीशियस कंसेप्ट आपको हम दे रहे हैं। और आगे देखिए अभी और इसमें मजा आने वाला है ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स जो है लाइट हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। और लाइट को लोग डिफिकल्ट समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि लाइट इज लाइट। मैं तो यही कहूंगा कि लाइट इज लाइट, लाइट इज वेरी इजी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए तनवीर सर के साथ।